Honorable Speaker sir, बंगोमुंडा पाई मेजर इरिगेशन पर्सनटा अच्छी इंद्ररू किंतु तुरेकेला पाई वर्तमान सुधा किसी प्रावधान से नहीं तार कारण तार आयकट एरिया कंप्लीट हो जाऊँगी तेणु मु पुणी माननीय विधायक जहाँ प्रश्न कर परीक्षा निरीक्षा करी जे पुणी किसी एक्सटेंशन करहब कि अनुल श्री केबी सिंह वाचस्पति महोदय मु मान्यवर मंत्री महोदय को जानापी चाहूँगी ये लोअर इंद्र प्रकल्प तो जो समय शुभ दिया ही से समय तार फाइनेंशियल व्हाट वाज द फाइनेंशियल cost at which it was to be implemented, what was the date of completion, original date of completion, and what is the date of proposed date of completion of the Lower Indra project. Number two, sir, in 2000, in the year 2000, the Government of India gave all clearances for the Upper Lant irrigation project. By when is the Upper Lant irrigation project going to be started by the government? Honorable Minister. सर ये मूल प्रकल्पर जहाँ कह मान्यवर विधायक पाटनागढ़ कहते ये मूल प्रकल्पर 1997 मसीह 211.7 कोटी थिला एवं ताहा बढ़ीगिरी वर्तमान सुधा रिवाइज कॉस्ट आसिक 1753.64 कोटी रे पहुँची सर ये जो लैप्स ऑफ टाइम आर प्रोब्लेम विभिन्न प्रोब्लेम काम ठीक समय रे हो पारि ना तेणु रिवाइज एस्टिमेटा बाहरी एवं अपर लांथ कथा जहाँ कहते अपर लांथ लोअर लांथ ये दुई प्रकल्प सार कार्यकारी हेले बेलपड़ा एवं सैतला ब्लॉक बहुत अंचल इरिगेटेड हेबो ताको आमे युद्धकालीन भित्तिर तार सर्वे इन्वेस्टिगेशन डिटेल डिजाइन करूचु जेते शीघ्र हेबो ताको कार्यकारी कराइयो। लोकल क्वेश्चन नाम क्वेश्चनर श्री आयुब खान। वाचस्पति महोदय मो मान्यवर मंत्री को धन्यवाद देवी जे लोअर इंद्रर टिटलागढ़ ब्लॉक हाराहारी 60 किलोमीटर डिस्टेंस पर्यंत पानी जाऊे तुरीकेला ब्लॉकटा 6-7 किलोमीटर डिस्टेंस रे अच्छी से भूतल पाइपलाइन जरिया कि अन्य कौन सी व्यवस्था करी तुरीकेला ब्लॉक को इरिगेशन फैसिलिटी जोगे देवार लगी व्यवस्था करेंगे कि। क्वेश्चन नंबर 5 ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल स्पीकर साहब आमर फ्लो इरिगेशन रे जो रेड रे पानी डिस्ट्रीब्यूशन हुए पाइप जल द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन टा ऑलमोस्ट डबल हो जाए जो 35% कार्य बाकी अच्छी ताकू जो आम प्रस्ताव रखीचु जे पाइप द्वारा जलसेचन नेटवर्कटा करने से जदि सार एक्चुअली आयकट एरिया बढ़े ताले निश्चित भाव तुरेकेला को टेकअप कराई। क्वेश्चन नंबर 598 श्री प्रकाश चंद्र बेहेरा एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 721 श्री डॉक्टर रमेश चंद्र चाव पट्टनायक एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 722 श्री सरोज कुमार सामल ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। Honorable Speaker, sir, GST has been introduced in the state with effect from 1st July 2017. It subsumes the state tax such as VAT, entry tax, entertainment tax, forest development tax, and central taxes such as central excise duty, service taxes, CST, and some other taxes. However, 6 goods, namely crude, petrol, diesel, natural gas, aviation turbine fuel, and alcoholic liquor for human consumption have been kept outside the purview of GST and continue to remain under VAT. As per the provision made in the Constitution 101st Amendment Act 2016, the state are to be compensated for any loss on account of introduction of GST for 5 years. For the purpose of compensation, collection of the taxes subsumed in GST in the year 2015-16 has been taken as the base year collection and 14% has been taken as the annual growth rate. Growth rate of 14% is applied annually to the base year collection to determine the projected collection in the year. Actual collection is deducted from the projected collection to arrive at the
compensation amount. In Odisha, for the year 2017-18, 1,196.48 crore is determined as the revenue to be protected in a month. Compensation is given provisionally on bi-monthly basis. Final settlement will be made after the end of the year based on the final revenue figure furnished by the Principal Accountant General of Odisha. For the purpose of compensating the state for loss, if any, on account of introduction of GST, the Goods and Services Tax Compensation to the States Act 2017 has been enacted. As per the provision of the Compensation Act, a compensation fund has been created. Compensation cess is collected on goods like tobacco and tobacco products, aerated drinks, pan masala, luxury cars, coals, and cess. And the cess so collected goes to the compensation fund to the center. From the compensation fund, the state are provisionally compensated bi-monthly, subject to final adjustment at the end of the year on the basis of verified figure by Principal Accountant General of Odisha. For Odisha, the revenue protected for the year 2017-18 from July 2017 to March 2018 is determined at 1,768.32 crore. During the period July 2017 to March 2018, an estimated 6,625.91 crore has been collected under GST and an amount of 1,832.74 crore has been collected under the Act subsumed in GST, making the total collection to the tune of 8,458.65 crore during against 2,309.67 crore of GST compensation due up to March 2018. The center has released 2,019 crore up to month of February 2018. The center is to release an amount of 290.67 crore towards loss for the month of March in bi-monthly compensation of March and April in May 2018. In the financial year 2016-17 up to June 2016, the state had collected 2,076.56 crore from the goods and taxes subsumed in GST. During financial year 2017-18 up to June 2017, the state collected taxes of 2,685.75 crore on GST goods. Odisha collected 9,757.98 crores on GST goods during July 2016 to March 2017, and during the corresponding period collected 8,458.65 crore towards GST and other taxes subsumed in GST. Besides, the state has received compensation 2,019 crore up to month of February 2018. The state collected 3,354.31 crore during 2016-17 from non-GST goods, and as against it, the state collected 8,281.18 crore during 2017-18. This collection of tax on non-GST goods in 2017-18 includes 2,012.32 crore deposited during September 2017, which the IOCL had collected between December 2015 to March 2017, but had not paid in time. The collection of GST and taxes subsumed in GST during 2017-18 and comparative collection of taxes in 2016-17 is at Annex 1. I will read out Annex 1. Honorable Shri Saroj Kumar Samal. Speaker sir, sir, last year the revenue projection from GST from July 17 to March 18 was determined to be 10,768 crores, but collection was 8,458 crores. Sir, so
a compensation is to be received 2,309 crores. Sir, my point is, against a target of SGST 5,950 crores in 17-18, this year we have made a budget of 12,000 crores only for SGST. How it will be possible when there is a less collection? Sir, I would like to know from Honorable Minister what are the reasons why the collection in GST is less this year. Honorable Minister. Honorable Speaker, sir, there is a certainly reasons for less collection. In Odisha, among other taxes, VAT, CST and entry taxes have been subsumed. In GST, VAT, CST and entry tax are collected on sale of goods and entry of goods into local areas. As against in GST, tax is collected on supply of goods and services. In GST, additional collection is only from services, whereas under the pre-GST system, 3 taxes collected on goods, tax from services is not sufficient to compensate the loss on account of submission of VAT and CST and entry tax. So, under the VAT, the tax collected from paddy, rice, atta, maida, suji, dal, pulses and as was a substantial amount of about 600 crore, but these goods have been exempted under GST. There is less collection in GST in Odisha because these goods are exempted and these are essential goods for general consumption. The standard rate of VAT was 14.5% under GST. The highest rate is 28%. That is SGST at the rate of 14%, but out of 228 goods, the GST Council has decided to reduce the tax rate of 178 goods from 28 to 18%. This is also a very important reason of reduction of taxes. The state will get SGST at the rate of 9% from those goods. Those will be decided in 18%, so the 50% is 9%. This is a good step for the consumers and the general public, though there is a revenue loss for the state. In Odisha, a substantial amount was collected from coal and minerals under VAT and CST Acts. The tax rate was 5% under VAT. Under GST, the coal and mineral are taxable at the rate of 5%. So the state share is 2.5%. Here we are losing 2.5% as it was 5% earlier by the state. In place of 5%, the state is now getting 2.5% tax on coal and minerals. So these are the reasons that the state is losing taxes. Honorable Shri Ved Prakash Agarwala. बाचस्पति महोदय, सर माननीय मंत्री कहले कंपेनसेशन आमको जहाँ दबार कथा से कंपेनसेशन सेस इज कलेक्टेड ऑन गुड्स लाइक tobacco products, aerated drinks, pan masala, liquors, coal and cess so collected goes to the compensation fund. Compensation fund रू से आमको compensation देबे. जदि compensation fund sufficient न हुए, if the compensation fund goes down, then what happens? ताहले आमे जितनी की compensation है जो 14% पाइबा कथा पाइबू ना नहीं. Honorable Minister. बाचस्पति महोदय, ये निश्चित भाव में एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग राज्यर स्वार्थ दृष्टि आम से जो कंपनसेशन पाइलु ना एवं जहाँ ठीक से 2015-16 बेस ईयर को आधार करिकी 13% ग्रोथ रेट उपर आम कंपनसेशन पाइबू से कंपनसेशन को एबे मध्य ताकू आकलन करने को हम जे राज्य से केतिकी राजस्व क्षति होची पुणी आगामी 5 वर्ष तेणु 5 वर्ष पर्यंत आम या अनुधान करने को पड़ो और से अनुसार आम जीएसटी काउंसिल. Honorable Shri नवकिशोर दास. स्पीकर सर मु माननीय मंत्री को जाना चाहूँगी कि प्रायर टू जीएसटी रे आम राजस्व केते पाउतला ओडिशा सरकार एवं ता परवर्ती रे केते पाइला एवं केते क्षयक्षति जहाँ कंपनसेशन कथा कहते आकलन करें केते एवं द्वितीय कथा हूँ सर आप देखिथे सुराट रे
आमर हीरा कटिंग वाला समस्त जीएसटी सारा भारत वर्ष में कटिला ओडिशा सरकार पाखे कंप्लेन आसी कि ये जो ताराकसी जो मैंने ओडिशा रे सब तैयारी कर जीएसटी है किसी प्रोब्लेम होती कि एवं एमती जदि किसी क्षुद्र व्यवसायी प्रोब्लेम होती ओडिशा सरकार भारतर जो काउंसिल अच्छी जीएसटी ताकू पकई कि रेज कर आमको जीएसटी ओडिशा रे कमा जाओ ऑनरेबल मिनिस्टर नहीं जीएसटी संक्रांत रे गुजरात भली राज्य जोठी अपन जो प्रश्न उठे डायमंड कटिंग रे सेठी मध्य व्यापक भाव में असंतोष से जाहिर कर जीएसटी काउंसिल ए संक्रांत रे आलोचना रोचे एवं सुना क्षेत्र रे मध्य जीएसटी को जनरल स्लैब रू रिडक्शन करा जाइछि जेतिकी रही 512 1828 भितर 3.5 को आनी एवं ओडिशा रे फिलिग्री वाच जो अच्छी तारकसी काम विभिन्न चारुकला शिल्प उपर मध्य बारंबार आम जीएसटी काउंसिल संक्रांत तथ्य उपस्थापन करिछु एवं दाबी रखिछु एवं जीएसटी काउंसिल गोटे कंटिन्यूइंग प्रोसेस अनेक विषय रे ओडिशा रे एपर्यंत हैंडलूम अन्य क्षेत्र में शाल शियाली खेलते जो विभिन्न कथा जो थे आमर टैक्सेसन नथिला से कथा गुड़िक से समस्या संक्रांत रे जीएसटी काउंसिल बारंबार आम दाबी रखुଛୁ। ऑनरेबल श्री अमर प्रसाद शतपथी बाचस्पति महोदय माननीय मंत्री कहते हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एवं ये भाव में जो मैंने क्षुद्र तांकर व्यवसाय करी वृत्ति करी चलती तांकू जीएसटी काउंसिल बाद देवाई आम राज्य प्रस्ताव देती भारत वर्षर अन्य को राज्य सेभली प्रस्ताव देती तार स्थिति वर्तमान कौन सर द्वितीय कर आईओसीएल संपर्क में माननीय मंत्री उल्लेख करुले आईओसीएल जो विवाद होता राज्य सरकार संगे जो टिकस जो प्राप्य संपर्क में से राज्य सरकार केते ये जो विवाद समाधान पर केते आमर ड्यू थिला केते आम अद्यावधि पाइचे माननीय मंत्री दयाकोरी कहिबे कि ऑनरेबल मिनिस्टर आम राज्य सरकार निश्चित भाव में हैंडलूम संक्रांत रे आम जेहेतु ओडिशा रे संबलपुरी साड़ी इत्यादि उपरे आम भैट नौ नथुलु एवं से दिगरे केंद्र सरकार को पाखरे सरकार आमर दाबी रही आछि मु जीएसटी काउंसिल विशेष भाव में हैंडलूम उपर जदि आपण देखिबे हैंडलूम रे एक सर्वभारतीय चित्र नुह 4-5टी स्टेट रे आंध्र छत्तीसगढ़ ओडिशा बंगाला इत्यादि स्टेट रे हैंडलूम संक्रांत रे समस्या रही तेणु हैंडलूम उपरे आमे जो 5% रही 1000 टंका उपर साड़ी उपरे अधिक रही ताऊपर आम एबे भी जीएसटी काउंसिल दाबी अब्याहत रखीचु ताकू 0% को एग्जेम्प्टेड करने एवं अन्य कथाटी आईओसीएल संक्रांत रे आम आईओसीएल सहित जो आलोचना होता से आलोचना रे आम आईओसीएल टू गत वर्ष 2017-18 जो बकाया थिला से बकाया अनुसार आम सहित आलोचना करूँ एवं से आलोचना अनुसार आईओसीएल सहित एग्रीमेंट रे आमे तांकोटर कंपनसेशन पाइचु एवं से जो कंपनसेशन देइचंती एवं आगामी वर्ष गुड़िकरे से रेगुलाराइज करबा पई सेथरे स्थिरकृत होइছে। ऑनरेबल श्री प्रदीप पुरोहित माननीय बाचस्पति महोदय पेट्रोल जातीय द्रव्य उपर राज्य सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकार भैट कलेक्शन करती एवं केंद्र सरकार जो जीएसटी रूल लागू करी आईन अच्छी जे जो राजस्व क्षति हेबो कंपनसेट करिबो केंद्र सरकार तेबे मु माननीय मंत्री को जानिबा को चाहिबी माननीय मुख्यमंत्री मध्य गृह रे उपस्थित अछंती पेट्रोल जातीय द्रव्य को जीएसटी रे लागू करिया पई राज्य सरकार प्रस्ताव देकी गोटे आदर्श तैयारी करिवे कि माननीय सदस्य निश्चिंत भाव में दलर सरकार केंद्र चली एवं जीएसटी काउंसिल रे ए पर्यंत पेट्रोल डीजेल संक्रांत रे जीएसटी लागू हवा संक्रांत रे आलोचना आरंभ है नहीं एवं ता पूर्व स्थिति रे जदि देखिबे जो कथा ए गृह रे आलोचना मध्य हेछि जीएसटी काउंसिल पूर्वरु
जो एम्पावर कमिटी विभिन्न फाइनेंस मिनिस्टर को लेकिन होता से राज्यर आर्थिक स्वाधीनता 6 गोटी द्रव्य क्रूड और पेट्रोल डीजेल विमान इंधन कंज्यूमेबल लिकर ये सब 6टी द्रव्य उपर भाट आदाय करार अधिकार राज्य मान को दि जाइए एवं से अधिकार बल राज्यर जो आर्थिक स्वतंत्रता रही जोटा कि वेलफेयर एक्टिविटीज राज्य खर्च कर ओडिशा 26% भाट एपर्यंत आदाय करथिला बेले प्राय 10टी 11टी जो गुड़िक संपन्न राज्य से माने 30-35%, 36%, 28%, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश भली राज्य माने सबुथे भाट आदाय करुचंती एवं से एवं केवल भाट न महाराष्ट्र में भाट सहित 9 टंका शेष भी आदाय होची तो ये सबू कथा आदाय होता बेले एवं केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज एवं एडिशनल टैक्स एवं ता उपरे शेष जो आदाय करुचंती आमे ता उपरे बेस प्राइस एवं ता उपरे राज्य सरकार 26% आदाय करिथांती तो केंद्र सरकार ए पर्यंत जदि ए गृह में माननीय पूर्वतन अर्थमंत्री तथ्य रखी वेदप्रकाश अग्रवाल सरकार तरफ आम तथ्य रखी जदि पार विथ जदि ओडिशा भली दुर्बल राज्य 26% भाट आदाय करुच्ची एवं वेलफेयर स्कीम में ताकू खर्च करुच्ची ताकू ताठू अधिक आदाय करुवा राज्य एवं सेंटर जो आदाय करुच्ची सेंटर जो आदाय करुच्ची सेंट्रल एक्साइज और ये शेष एडिशनल एक्साइज को आदाय करुच्ची ताकू जदि आपण मिसई देवे से राज्य गुड़िकर आदाय ठारू बहुत अधिक तो जदि केवल जीएसटी काउंसिल एक कथा उठिले आम से आलोचन रखिबू आम कौन से संक्रांत निष्पत्ति नियाजिव जेहेतु जातीय स्तर निष्पत्ति सर्वभारतीय स्तर निष्पत्ति सबू राज्य माने संक्रांत मत देवे सहमति भितर निष्पत्ति हम किंतु केंद्र सरकार जदि तांकर एक्साइज ड्यूटी को कमई देकी पार विथ द स्टेट गवर्नमेंट करेंगे से अनेक परिमाण पेट्रोल डीजेल दर कमिजिव तेणु यही दृष्टि जेपर्यंत जीएसटी काउंसिल ये कथा आसी ना सेठी एजेंडा भाव में जिते केंद्र मंत्री आणवे एजेंडा भाव में से ओडिशा तार आदर्श कौन देखब से कौन सहज रही समय तार निर्धारित हम अनुल श्री प्रियदर्शी मिश्र। धन्यवाद स्पीकर सर मो माननीय मंत्री ठारू जानवा चाहिए जीएसटी को सुदृढ़ करने जीएसटी काउंसिल कौन पदक्षेप नेउछि एवं द्वितीय लोकल अर्बन बॉडी को टैक्स गुड़ी को एक्सक्लूड करा जाइछि एवं ताकू भरणा करने कौन पदक्षेप निया जाउछि। अनुल मिश्र। माननीय बाचस्पति महोदय जीएसटी एपर्यंत गोटे प्रोसेस वर्क भितर अच्छी एक्सपेरिमेंट भितर अच्छी स्टेबलाइजेशन है नहीं कारण आर जो भाट समय रे जो मैनुअल प्रोसेस रिटर्न फाइल इत्यादि इत्यादि जो भितर थिला वर्तमान एक नेटवर्क सहित जोड़िला परे याकू एथिरे अनेक ग्लिचेस देखा देछि ताकू दूर करिबा पई जीएसटीएन काउंसिल बोली गोटे काउंसिल गठित होईछि ता जीएसटी काउंसिल द्वारा होईछि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तादेर अछंती ओडिशा मध्य तादेर प्रतिनिधित्व करूछि 5टी राज्यर फाइनेंस मिनिस्टर माने सेथिरे अछंती ओडिशा से प्रतिनिधित्व करुला बेले जीएसटीएन संक्रांत जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स रोची से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने प्रति जीएसटीएन मीटिंग रे से आलोचना हो सॉर्ट आउट करा जाउची तेणु जीएसटीएन काउंसिल रे मेनली रिटर्न फाइल को सहज सरल करने कमिटी गठन कराई कारण रिटर्न फाइलिंग रे अनेक फॉल्ट्स रोची एवं ताकू दूर करने जीएसटीएन काउंसिल तार जो व्यवस्था रही से व्यवस्था टेक्निकल सॉर्ट आउट कराउची एवं जीएसटी काउंसिल लॉ कमिटी और फिटमेंट कमिटी रही सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने माने टैक्स फाइनालाइजेशन को आरंभ कर विभिन्न समस्या जो रोची से सब कमिटी गुड़िक सॉर्ट आउट करुच्ची एवं ए दिगरे दिन को दिन अधिक भाव में जीएसटी व्यवस्था सरल होउची एवं साधारण लोक ट्रेडर और बेनिफिटर्स जो माने बेनिफिशियरी समान सुविधा एथिरे पर्याप्त आलोचना एवं समाधान रास्ता खोलुँ। अनुल श्री देवाशीष नायक। सर सबुठ अलार्मिंग कथा रही जीएसटी रे
मु माननीय मंत्री ठारू क्लारिफिकेशन मागुची बिकॉज ही इज आल्सो ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो वन ऑफ द मेंबर इन जीएसटी काउंसिल भारत वर्ष विभिन्न जगह बुलूँ लास्ट मीटिंग गोवा रे करथिले ता आगु हैदराबाद रे करथिले समस्त जाइए भल 5 तारका होटेल रोचंती मो कथा होची सर मते माननीय मंत्री कहिबे कि व्हाट इज द कमर्शियल वैल्यू गोटे चिठी गोटे बापा पुओ को पठाउची बा पुओ बापा को पठाउची गोटे चिठी जो स्पीड पोस्ट कराऊँच रजिस्ट्री पठा जाऊँगी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करी 18% जीएसटी कलेक्शन करेंगे गोटे स्मॉल पुअर गोटे लोकटे जदि से प्रीमियम दौची LIC रे ता फैमिली को सिक्योर करने से भी सी 18% जिजिया कर से दब आज जो देश जो अवस्था अच्छी मुझे आज माननीय मंत्री जानवा चाहूँगी जे जो काउंसिल रही से काउंसिल ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ये जो समस्या गुड़ा रही प्रत्येक घरे घरे केंद्र सरकार पशिकी जो लुटुंट आज प्रत्येक क्षेत्र में गोटे एग्जांपल दूसरी सर माननीय मंत्री जानवा दरकार हठात गोटे बाहागर था बरी निर्वाचन मंडल में मो पाखे पैसा ना कार्ड ए तो सब एनकरेज कर कार्ड यूज करने गोटे घड़ीटे किणीदेली किनला देखली 18% जीएसटी ठीक अच्छे जीएसटी अच्छी 18% मुझे व्हेन आई गेट्स द बिल्स फ्रॉम द बैंक बिल पुणी 18% 36% आई हैव टू पे जीएसटी गोटे घड़ी किनले गोटे LIC प्रीमियम गोटे गरीब लोक से देवे जीएसटी गोटे चिठी पठेबे जार कमर्शियल नेचर किसी ना से देवे 18%। इे आप इंडियन ऑयल जहाँ कहले आप धरतु आप कहले ठीक अच्छे इंडियन ऑयल पेमेंट कर आर वर्ष हो कि ए वर्ष एंड्रे हो यही जो ट्रांजिट पीरियड रे जो हजार हजार इंडियन ऑयल शेयर गोटे कैशरिच कंपनी इट इज ए कैशरिच कंपनी इंडिया रो सबुठु कैशरिच कंपनी होची इंडियन ऑयल व्हाई दे विल नॉट पे द स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यूज आमे टाइम दबा कहीं आमे दबा से केते पैसा बाकी रही केते पैसा देबे प्लस आपनकर जो जीएसटी इम्प्लीमेंट करबा आगुरु सर जो आमर कलेक्शन होतला सर स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्शन होतला एवं जीएसटी इम्प्लीमेंट हवा परे केते आमे लाभवान होचु बा केते सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर ड्यू अछि ता ऊपर माननीय मंत्री उत्तर रखिए ऑनरेबल मिनिस्टर से सर्विस आपण जोटा कहते सर्विसेस उपरे माननीय बाचस्पति महोदय माननीय वरी सदस्य जोटा कहते से अति गुरुत्वपूर्ण कथा एवं साधारण जो समस्या सृष्टि एवं जहाँ प्रति कंज्यूमर जो असुविधार शिकार होती से कहते सर्विसेस इज ए न्यू प्रोसेस एडिशन टू दिस गुड्स एवं ये जो गुड्स व्यवस्था गुड्स टैक्सेस उपरे प्रथम सेल टैक्स तापर भैट को आसला भैट पर जो जीएसटी को आसी जीएसटी को आसला बेले इट इज ए न्यू प्रोसेस एवं 2017 जुलाई 1 ठारू आरंभ होती एथिरे अनेक समस्या रही से समस्या को दूर करने कन्स्टिट्यूशनली जीएसटी काउंसिल फॉर्म होती निश्चित भाव में आप जो तथ्य रखिंट जो समस्या रखिंट जीएसटी काउंसिल रे राज्य तरफ उपस्थापित हम ये अनेक समस्या रही जो राज्य समस्यार सम्मुखीन होची जो भाव में रेवेन्यू लॉस करुच्ची आम कोल 5% पाऊलु राज्य आदाय करूला बर्तमान कोल जो 50% होगा आम 2.5 पाइबू तेणु अनेक लॉस आम करुचु ये लॉस भरणा 5 वर्ष पर्यंत हम 5 वर्ष पर कौन हम से आमको चिंता करने को पड़ो जीएसटी काउंसिल ये समस्या उत्थापित हम ऑनरेबल श्री अतनु सब्यसाची नायक।